Greetings from Citizen Health under Team Academia IAPSM, and in the series of People's Health It Matters, today we have Dr. Vihang Majumdar, very senior doctor. He is a retired professor in Head of Community Medicine, Baroda. Very warm welcome to you, sir, on behalf of all the audience. Thank you. And I would like to tell everyone that today we are going to discuss a very interesting topic, that how media affect our health in this COVID pandemic. Right, sir? Ji. Okay, sir. So I would like to start my question with you that how do you think that this media affect our health, or to be very appropriate, if I ask that COVID-19 pandemic has witnessed an unprecedented involvement of media in health related issue. Do you feel that it is a good thing? It is actually a double-edged sword because up till now, health has not got the importance it should have got in public, especially in mainstream media. So very often you find that it is only a passing reference कि आज यहाँ पे इतने बीमारी हुई, इतने यहाँ पे केस हुए. The discussion only remains only till a very shallow to only report number of deaths or cases, but never except in COVID we have seen such an involvement at all levels. And there's a great detailed discussion. That means the whole of 2020, all news channels, all news hours had only COVID discussion. And you had people from all sorts of specialty, neurologists, neurophysicians, pathologists, everybody discussing only COVID and nothing else. Maybe whether it was in the world or in India or in different states. Up to even, it is the first time I remember, I have been in public health for more than 35 years now, that never has the Prime Minister spent so much time talking about the disease and its prevention. कितनी बार उन्होंने अपील की है कि उनको दवाई भी है, कड़ाई भी है, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे. पीएम, ऑनरेबल पीएम ने भी कितनी बार आके नेशनल मीडिया पे उन्होंने स्पीच दिया है, इसके बारे में बोला है. वो कभी आज तक नहीं हुआ. So you see that it is a very total involvement in terms of what it was ever for any disease. Maybe because it is a new disease, so many cases, so many people dying, it required that importance. तो एक अच्छी बात है कि वो वहाँ पे उसका focus है. But एक दूसरा which I feel is something which was not really desirable was कि there are about 500 channels in India, उसमें से कम 50-100 news channels होते हैं. तो वहाँ पे एक कॉम्पिटेटिव हमने देखा गया कि बहुत डिटेल में लोग उसमें जाने लगे. कई उनको एक्सपर्ट्स बुलाए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बुलाए, जेनेटिस्ट को बुलाए, कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाए. अच्छा साहब, ये कॉम्प्लिकेशन कैसे होता है, इसमें क्या होगा, डिजीज में क्या हो रहा है. तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल दैट आर नॉट वाज डिस्कस इन ग्रेट डिटेल कि हाँ कौन से स्टेट का, कौन से सिटी का आर नॉट कौन से लेवल पे पहुंचा है, इसका 1.8 हो गया, इसका 1 होगा तो उसका क्या मीनिंग. So this was only something which we discussed in our PG classes in medical college and in community medicine. It was, we never expected कि वो आर नॉट शब्द में कभी नेशनल मीडिया में सुन पाऊंगा. But people were discussing that. I'm sure that it does not make much sense to a lay person. तो उसमें क्या होता है, when you go into great details about medical intricacies कि अच्छा म्यूटेशन कौन सा हो गया, कौन से लेवल पे कौन सा उसका एमाइनो एसिड चेंज हो गया, ये चेंज हो गया वायरस में, तो वो क्या होता है, जो मेन फोकस जो होना चाहिए जनरल पब्लिक का, वो उसका ध्यान वहां से हट जाता है. वो अननेसेसरी डिटेल डिस्कशन हो जाते हैं. अच्छा भाई हमारे वहां म्यूटेशन आ गया, अभी डेल्टा चल रहा है, हमारे वहां बीटा है, आपके वहां डेल्टा आ गया. तो वो बीटा डेल्टा के चक्कर में जो मेन चीज करनी है वो तो चेंज नहीं होती. जो सैनिटाइजेशन करना है, डिस्टेंस रखना है, केयरफुल रहना है, बीमारी के कैसे प्रिवेंट करनी है, वहां से ध्यान हट जाता है. अच्छा अभी हम तो डेल्टा से डील करेंगे, हम उससे डील करेंगे. तो देयर समटाइम्स इट हैपन दैट टू मच डिटेल्स you miss the main focus. So there is some advantage, but at the same time उसका एक लेवल होना चाहिए, उसका एक मापदंड होना चाहिए कि इससे ज्यादा हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे. तो वो पब्लिक के लिए जो अप्रोप्रिएट है. आई एम श्योर पीपल हैव अ राइट टू नो ऑल द डिटेल्स. तो वो चले जाए आईसीएमआर की वेबसाइट पे पढ़ लें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे सब डिटेल्स अवेलेबल होने चाहिए. मैं ऐसा नहीं कर रहा कि हम कुछ बात छुपाएंगे लोगों से, लेकिन वो मीडिया में जिसके लिए जो सभी देख रहे हैं तो सभी के लिए वो अप्रोप्रिएट ही होता. चाहे उसका एक स्पेशल सेक्शन करे, अलग से प्रोग्राम करे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज में बहुत ज्यादा डिटेल से कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है. दैट इज व्हाट वी शुड अवॉइड.
सर कोविड-19 में हमने देखा है हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, उनके नंबर और एडवर्टाइज़मेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हाउ डू यू सी दिस फिनोमेना? वो जैसे है बिजनेस वालों ने एक अपॉर्चुनिटी, जैसे हमने देखा कि मीडिया में ये भी डिस्कशन हुआ कि इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई, लॉकडाउन हो गया, कई रोजगार कम हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई, तो लॉट ऑफ बिजनेस वेंट डाउन, बट एट द सेम टाइम इट गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री। आप जो सही बता रही है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री का प्रोडक्ट्स बढ़ गए, तो जो जो कंपनी हमें कभी नाम भी नहीं सुनी थी वो सैनिटाइजर बनाने लगे, कोई चीज जो कॉस्मेटिक बना रहे थे वो सैनिटाइजर बनाने लगे, जो साबुन बनाते वो सैनिटाइजर बनाने लगे। सो ऑल द प्रोडक्ट्स के जिसके जो हम नॉर्मली यूज करते थे, डिसइंफेक्टेंट यूज करते थे, उन्होंने अपना प्रोडक्ट का उसका रिक्वायरमेंट उसका यूज चेंज कर दिया। अच्छा हाँ भाई, ये कोविड में भी यूज होगा, हर सरफेस को क्लीन करने के लिए अब ये इस्तेमाल हो सकता है। नॉट ओनली दैट, पीपल चेंज देयर एफिशिएंसी। पहले वो बात करते थे कि हमारा प्रोडक्ट 99% एफिशिएंट है या 98% एफिशिएंट है, सडनली हम मीडिया में देखने लगे, अखबार में पढ़ने लगे, अब वो प्रोडक्ट 99.9% इफेक्टिव हो गया। अब बोलता है वो तो कोविड के सामने भी इफेक्टिव है। अब किसने प्रूव किया, कौन किसने जांच की? तो हमारे पास ऐसी कोई इंडिपेंडेंट लैब नहीं है वो सर्टिफाई कर रही है कि हाँ ये प्रोडक्ट। सिर्फ इतना बोला गया है कि इथेनॉल है, अल्कोहल है, उससे वायरस मरता है। अब चाहे किसी भी डिब्बे में डालो या किसी भी लिक्विड में डालो, चाहे कोई भी ब्रांड से बेचो, अल्कोहल अल्कोहल रहता है, वो प्रोडक्ट तो बेसिक इथेनॉल ही था। तो लेकिन वो अपनी तरह से वो एडवर्टाइज करके हाँ नहीं हमारा प्रोडक्ट है वो 99% इफेक्टिव है। अब कितना लगाओगे, कितने दिन में लगाओगे, कितने दिन में कितनी बार लगाओगे, तो उसकी कहीं क्लैरिटी नहीं आती। अच्छा, आरटीपीसीआर हम उसको आइडियल टेस्ट गिनते हैं, वो कहीं पे वायरस नहीं गिन रहा है, इट्स नॉट काउंटिंग एग्जैक्टली नंबर ऑफ वायरस, इट इज ओनली काउंटिंग रेप्लिकेशंस। राइट। फिर भी ये लोग बोल रहे हैं जिसका मतलब 99 मत का मतलब क्या हुआ कि अगर 1000 वायरस है, वो प्रोडक्ट लगाने से सिर्फ एक वायरस बच जाएगा। तो इतनी एफिशिएंसी से तो कौन किसने गिन पाया कि भाई कितने वायरस थे पहले, फिर ये हमने छाटा या लगाया तो अब कितने वायरस रह गए, हाथ पे अपने कितने वायरस थे, आपने सैनिटाइज किया अपने हाथ को, अब आपके हाथ में कितने वायरस बच गए। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, तो वो दे गेट कैरिड अवे। अच्छा भाई हम ये भी प्रोडक्ट लेंगे, हम इसको छाटेंगे पूरे दिन, घर के दरवाजों के हैंडल पे छाटेंगे, टेबल पे छाटेंगे, तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट हम बिकेगा उनका, लेकिन हमको कितनी एफिशिएंसी से, पहले गंदा था या नहीं वो तो मालूम ही नहीं हमें, फिर भी हम उसको छांट के उसको हम क्रेडिट दे रहे हैं कि हमने वो दवाई छांटी या हमने वो दवाई लगाई या इससे हमने हाथ साफ किया इसलिए हमें कोरोना नहीं हुआ, तो क्रेडिट किसी और को मिल रही है। हम चाहे साबुन से हाथ धोने के बाद फिर से सैनिटाइजर लगाएंगे तो हम क्रेडिट साबुन को नहीं देंगे, हम क्रेडिट सैनिटाइजर को देंगे, तो कहीं वो मिसगाइड हो जाता है, लोगों से होता रहता है उसमें। लेकिन बट दूसरा ये हमने देखा है कि इवन मास्क में जैसे कि पहले मास्क में ये थी कि मास्क मिलते ही नहीं थे, इंडिया में शॉर्टेज थी, डॉक्टरों के लिए मास्क नहीं थे, N95 का झगड़ा था, ब्लैक मार्केट हो रहा था, यहाँ से इंपोर्ट करो वहां से इंपोर्ट करो। सडनली एंड हम लोगों को बोल रहे थे कि देखो भैया मास्क डॉक्टरों के लिए रहने दो, आप दुपट्टा मुंह पे बांधो, हैंकी बांधो, तो उससे भी 2-3 लेयर हो जाएंगे तो भी आपको बच पाओगे। तो वो पूरा पिक्चर चेंज हो गया। फिर वो मास्क इतने ज्यादा अवेलेबल होने लगे तो अभी उसको एक्सप्लॉयटेशन हो गया। फिर होने लगे कि अच्छा डिजाइनर मास्क आने लगे कि वो ड्रेस के साथ मैचिंग मास्क मिलेगा या फिर ब्रांडेड मास्क मिलेगा, उसका लोगो लगा रहता है, वो डिजाइनर कपड़ों का लोगो रहता है मास्क में। फिर एम्ब्रॉयडर मास्क आने लगे, अब 400-500 रुपए का भी मास्क लोग बेचते हैं, क्या बोला बहुत यूनिक है। तो इट हैज बिकम अ फैशन स्टेटमेंट, इट हैज बिकम कि भी हाँ कि अब वो एक स्टेटस हो गया कि मैं डिजाइनर मास्क पहनता हूँ, फलाना ब्रांड का मास्क मैंने पहना हुआ है, तो मैं तो मेरा स्टेटस बड़ा है। तो पूरा पूरा पैराडाइम दैट मींस वो पूरी चीज एक्सप्लॉइट हो गई। एक मास्क जैसा दैट मींस उसका जो मास्क का इंपॉर्टेंस था कि वायरस से बचना है, फिर भी लोग पहनने वाले तो दाढ़ी पे ही मास्क पहनते हैं, नाक पे तो पहनते नहीं। तो द होल फोकस व्हिच वाज देयर दैट दे शुड वेयर मास्क प्रॉपर्ली, चाहे वो क्लॉथ का मास्क हो, N95 हो या 3 लेयर्ड मास्क हो, पहनना सही तरीके से है, हमेशा पहनना है, पब्लिक प्लेस पे पहनना है, तो वो फोकस हट गया। देन इट बिकेम के वो फैशन स्टेटमेंट, हाँ कि मेरे मुंह पे एक डिजाइनर लोगो दिखना चाहिए जो मास्क में, वो इम्पोर्टेंट था। तो दैट हैज चेंज्ड, आई बिलीव कि वो गलत चीज हो गई, लेकिन एक्सप्लॉइट हो गया, वो भी चीज एक एक्सप्लॉइट हो गई कोविड में। True, true. But this is not new, sir. It has happened before. So how does it impact the general public? क्या फर्क पड़ कई रहा है बार क्या लोगों को? उसमें क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट इज अ वेरी 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 एडवांस साइंस। लोग समझते हैं उससे बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और डेप्थ में साइकोलॉजिकल फैक्टर को स्टडी करके वो एक साइंस है।
जिसको हम उसको इतने उसका तवज्जो नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब आज से 10-15 साल पहले हार्ट डिजीज कॉमन होने लगी, ऐसा होने लगा, आप देखो आज बाजार में, इफ यू आर, आप लेडीज व्हेन दे गो फॉर शॉपिंग, आप अगर कोई सुपर स्टोर में जाएंगे, आप 15-20 तरह के ऑयल्स देखेंगे। लेकिन अभी जैसे क्या एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे वो फोकस कर रहा है कि वो आपको, जब आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, दे विल शो यू कि आप कोई पूरी तल रहा है, कोई गुलाब जामुन बना रहा है, कोई ये बना रहा है। सो द मैसेज विच गोज इज कि अगर आप ये तेल की पूरी या गुलाब जामुन खाओगे तो वो हेल्दी है, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। दैट इज द मैसेज पीपल विल गेट। कोई करेला कद्दू नहीं दिखाता है तेल से बना हुआ, कि आलू की सब्जी नहीं दिखाते। वो तो ऐसी जो हमको खानी है, लेकिन हमको डॉक्टर ने मना किया है कि आपके लिए सही नहीं है, तो हम उसको, उसका वाया मीडिया कहां से ढूंढेंगे? हाँ सर, हम तो हेल्दी तेल की खा रहे हैं, हम अनसेफ तेल की नहीं खा रहे, हम अच्छे तेल की खा रहे, महंगे तेल की खा रहे, इसलिए हमारी तबीयत को नुकसान नहीं होगा। तो द रॉन्ग मैसेज गोज, बेसिकली कोई भी तेल ले लो, कोई भी ओरिजिन का आप तेल ले लो, उसकी कैलोरी पर मिली ml सेम होती है, वो 9 कैलोरी ही देगा। आप कोई भी तेल ले लो दुनिया का, वो आपको 1 ml में 9 कैलोरी ही देगा। लेकिन उसका क्या कंटेंट अलग होता है, उसका फैटी एसिड अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग तेल की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर आपसे बहुत डिटेल में गृहिणी के पेशेंट की वाइफ से या फैमिली से डिस्कस करते हैं, हाँ जी आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हो, कितना यूज करते हो, सब्जी में आप कितनी चम्मच तेल डालते हो। तो ऐसा कोई डिटेल में डॉक्टर को डिस्कस करने का टाइम नहीं होता। तो इफेक्ट कहाँ होती है कि जैसे किसी नॉर्मल पर्सन भी है, बट दे आर वेल टू डू, मिडिल क्लास है, वो एडवर्टाइजमेंट में लेडी देखती है, अच्छा आप अपने पति से प्यार करती है तो आप उसका हृदय का ध्यान रखेंगी, तो आप उसको ये तेल देंगे, वो हेल्दी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, बच्चे के साथ खेलता हुआ दिखाएंगे, तो ऑफिस से आते भी वो थकते नहीं है अगर ये तेल का खाना पकाओ। तो एवरीवेयर दैट लेडी हु विल अनकॉन्शियसली थिंक कि अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं ये एक्स तेल क्यों ना यूज करूं मेरे हस्बैंड के लिए या मेरी फैमिली के लिए। तो मेरे को लेकिन महंगा होगा, लेकिन मेरी फैमिली हेल्दी रहेगी। सो देयर इज अ वेरी सटल मैसेजिंग। सिमिलरली इफ यू सी के सडनली कोविड टाइम में इम्यूनिटी बूस्टर के बहुत प्रोडक्ट्स बाहर आ गए कि आप ये ले लीजिए, आप ये च्यवनप्राश खाइए, आप ये खाइए, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खाइए, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। बट वेयर इज द ऑब्जेक्टिव एविडेंस कि पहले आपकी इम्यूनिटी एक्स थी, आपने एक डिब्बा च्यवनप्राश खाया कि आपकी इम्यूनिटी वाई हो गई। तो वो कहीं पे हमको ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो है नहीं कि हम मेजर करेंगे कि पहले हमारे कैसी थी अब कैसी होगी। तो एक बहुत दूसरा सटल मैसेजिंग कहाँ चेंज हुआ कि जो हाई रिस्क कैटेगरी बोली गई इनिशियल कोविड में कि भाई वो एल्डरली को इफेक्ट करता है, उनमें मोर्टेलिटी ज्यादा होती है, लेडीज में होती है, प्रेग्नेंट में, तो आप देखो टारगेटिंग चेंज हो गया, प्रोडक्ट वही था। फिर वो बोलते हैं हाँ चलो वो बूढ़े भी उसके लिए, दिस इज फॉर एल्डरली, हमने इसमें ये चेंज किया है, वी हैव चेंज सम कंटेंट व्हिच इज नाउ बिकम वेरी गुड फॉर द एल्डरली, और दिस प्रोडक्ट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू improve their immunity. So again there was a targeted messaging which slightly changed कि ये अब ये भी यूज करो। तो हम कई जगह पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल क्या होता है कि मैसेजिंग होता है, फिर उसको वो एक स्टेटस में ले जाते हैं। घर पे आपके वाटर प्यूरिफायर है, आप आरओ डालते हो, तो मेरा ये पूछना चाहता हूँ कि जिसने आरओ डाला उसके पहले क्या हर हर हफ्ते सबको डायरिया होता था या हर महीने सभी को डायरिया होता था? नहीं होता था। फिर भी आपने बोला कि स्टेटस सिंबल, अगर हमारे घर में आरओ नहीं हुआ या वाटर फिल्टर नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी आएंगे कि तुम्हारे घर वाटर फिल्टर भी नहीं है, तो आपने वाटर फिल्टर डलवाया। अच्छी सी लाइट होती है, तरह तरह की लाइट होती है, लेकिन पानी जो पहले अंदर गया और बाहर आया उसमें क्या डिफरेंस था बैक्टीरिया में, वो पता नहीं चलता। वायरस कितने गए वो कहीं टेस्ट नहीं हुआ कराते, बट स्टिल वी विल गिव क्रेडिट कि अच्छा हमने वो XYZ वाटर प्यूरिफायर डाला है, उसके बाद हमारे घर में पेट की बीमारी बंद हो गई। और पहले नहीं थी वो भूल जाते, लेकिन बाद में वो नहीं हुई तो क्रेडिट तो देना पड़ेगा, क्योंकि यू स्पेंड 10,000 रुपीज, यू स्पेंड 15,000 रुपीज, यू वुड वांट टू गिव क्रेडिट टू दैट प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ दैट नाउ I don't have a problem, or my children don't have a problem. So somewhere that marketing also helps. The advertisement will help the people. The sometimes उसमें ये क्या होता है कि ये मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये इट इज नॉट ए क्वेश्चन कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं है या गांव के लोग अफेक्ट हो जाते हैं, अच्छे खासे पढ़े, बिकॉज कहीं पे क्या होता है हर एक चीज में कि यू आर बीइंग टारगेटेड फॉर योर हिडन डिजायर्स, कि वो हमारे सब कॉन्शियस में है कि हमें ऐसा। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट ब्यूटी प्रोडक्ट्स, so India is the only country where skin whitening substances
इज ए मल्टी 100 करोड़ बिजनेस, और दुनिया में कहीं नहीं है कि जिसको गोरा होना है। तो पहले इट वाज ओनली फॉर लेडीज, फिर सोचा कि अच्छा क्यों मर्द क्यों पीछे रह जाए, तो मर्द को भी टारगेट करने लगे कि आप काले मत रहो, आप भी गोरे हो जाओ। तो यूर पीपल आर स्पेंडिंग crores and crores rupees on skin whitening cream. That means you want to be something you are not. अमेरिका में जो गोरे होते हैं वो टैनिंग, धूप में सो के काले होते हैं, हम जो काले होते हैं हम क्रीम लगा के गोरे होते हैं। तो हर एक जगह पे यू वांट टू बी समथिंग यू आर नॉट। तो वो एक अपना जो साइकोलॉजी होती है वो टारगेट की जाती है। तो मैं देखो, जैसे मैं तो 25 अभी जब स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता था हमारे, तो मैं हमेशा मेरा एक फेवरेट एग्जांपल मैं हमेशा देता था कि आपने एक ऐड देखा होगा जहां पे एक बंदा डिओ लगा रहा है, और डिओ लगा के बाहर निकला डिओड्रेंट लगा के, तो उसके पीछे 10 औरतें चलने लगी, जस्ट बिकॉज उसने वो डिओ, उसकी खुशबू से 10 औरतें उसके पीछे चलने लगी। अब वो जो बंदा खरीद रहा है जाके मार्केट में ऐड देख के, उसको मालूम है कि ऐसा तो लॉजिकली तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि किसी भी खुशबू से कोई मेरे पीछे चलने लगेगा। फिर भी उसकी साइकोलॉजी कहती है कि अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा। तो देन ही सॉर्ट ऑफ पीपल स्टार्ट रैशनलाइजिंग इन देयर माइंड्स कि शायद वो एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन झूठ तो नहीं हो सकता, कुछ कायदा होगा झूठ बोलने में। एडवर्टाइजमेंट झूठ तो नहीं बोल सकते, कुछ कायदा होना चाहिए होगा देश में कि जहां पे आप एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल झूठ तो नहीं बोल सकते, आप एग्जैजरेट करना आपको अलाउड है, तो आप बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। सो देन व्हाट विल दे विल थिंक इन देयर माइंड्स, ठीक है 10 नहीं तो 2 भी आएंगी, 150 रुपए में इट्स नॉट अ बैड बार्गेन, कि 2-3 भी पीछे आती है 200 रुपए खर्च के डीओ लगा के, तो मेरे लिए वो ठीक है, 2 क्या 1 ही आ जाए तो भी मेरा तो काम हो गया 150-200 रुपए में। सो दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। हमको मालूम है कि ऐसा दुनिया में हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई खुशबू नहीं है, फिर भी हम मेरे इन माय हार्ट ऑफ हार्ट्स आई वांट टू बिलीव इट इज ट्रू। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी एंड दैट्स हाउ इट इज बीइंग टारगेटेड। तो हमको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात क्या है कि हम सरकार में रहते हुए, पब्लिक हेल्थ में रहते हुए, हमारे पास ऐसे रिसोर्स और हम ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। अगर हम कर पाते तो हमारे बहुत सारे पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते, चाहे वो वैक्सीन हेजिटेंसी हो, ब्रेस्ट फीडिंग हो, ओआरएस हो। हमने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट हैज बीन यूज्ड इन द पास्ट इन एडवर्टाइजमेंट, हमने वहीं से लिया है वो, कि जैसे बच्चन साहब ने वो 2 बूंद जिंदगी स्टार्टेड विद हिम, और देन लेटर ऑन आई डोनेशन, ट्यूबरकुलोसिस, सैनिटेशन, सभी जगह हमने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट यूज किया है। बट लेकिन सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में भी एट सम पॉइंट इन टाइम उसका रिटर्न लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चन साहब को आप देखो तो आप 2 बूंद जिंदगी के बोले, लेकिन आप हर तीसरी एड में अगर आप बच्चन साहब देख रहे हैं, वो गोल्ड लोन हो या कुछ नवरत्न तेल हो या जो भी प्रोडक्ट हो, देन इट लूजेस इट्स इंपॉर्टेंस, बिकॉज के बच्चन साहब तो सभी कुछ चीज बोलते थे, हम सभी चीज थोड़ी यूज करते हैं, बच्चन साहब बोलते तो कहीं पे उसकी फिर वो अहमियत कम होने लगती है। सो अगेन इट हैज टू बी यूज्ड वेरी जुडिशियसली, वेरी वेरी रैशनली, लेकिन हमारे पास वो इतने एडवर्टाइजमेंट में जो यूज कॉर्पोरेट यूज करते हैं। मैं आपको जो एग्जांपल तेल का दे रहा था, मान लीजिए कि 1% ऑफ विमेन इन इंडिया पॉपुलेशन, 130 करोड़ में से 1%, दैट मीन 1.3 करोड़ विमेन स्पेंड 100 रुपीज मोर ऑन ऑयल, तो 130 करोड़ रुपए कंपनी को तो मिल गए, ओनली बाय 1% पॉपुलेशन बीइंग स्वेड। तो अगर उसने एड एजेंसी को 1 करोड़ रुपया दिया है, तो उसको एड एजेंसी ने 1.25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करवा के दिया है कहीं पे। सो इट ऑब्वियसली इट इम्पैक्ट, क्या जेब से पहले पैसा जा रहा है, लेकिन ये पैसा मैं कुछ और जगह पे ज्यादा अच्छा स्पेंड कर पाता, मेरे बच्चों के लिए फ्रूट खरीद पाता। सो सी व्हाट इज इंपॉर्टेंस इज अ पर्सन हु इज अदरवाइज हेल्दी, मोर इंपॉर्टेंट इज टू रिड्यूस द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ ऑयल व्हिच आई ईट। खुद का तेल का हम पूरी पकौड़े कम कर दे, फ्राइड कम कर दे, हेल्दी खाना खाएं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इट्स नॉट कि मैं एक्स करूं या वाई करूं, पर मेरे को हेल्दी रहना है, मेरा आई शुड बी एबल टू स्पेंड माई मनी करेक्टली ऑन राइट थिंग्स फॉर माई फैमिली, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे सबके पास इतने पैसे होते नहीं, उसको जुडिशियसली यूज करना है, उसको समझ के यूज करना है, वो इम्पोर्टेंट। एकदम सही बात है सर। तो आपको क्या लगता है ऐसे एडवर्टीजमेंट को बैन कर देना चाहिए? जैसे अभी जो आप डियो का बता रहे थे एग्जाम्पल, वो डियो का एड बैन हो गया था, और एक ऐसे ही एक ब्यूटी क्रीम थी, उसका भी वो नाम बदलना पड़ा उनको। तो आपको क्या लगता है ये बैन करना इफेक्टिव होगा इसके लिए? बैन का वो एक लिमिटेड यूज होता है, सभी चीज में नहीं इफेक्टिव। फॉर एग्जांपल अभी अब सिगरेट्स का भी हमने बैन किया, नो एडवर्टाइजमेंट इज अलाउड फॉर सिगरेट्स, नो एडवर्टाइजमेंट इज अलाउड फॉर अल्कोहल। देयर आर पीपल लाइक सेलिब्रिटीज हु सेड कि हम सिगरेट और अल्कोहल के एड में नहीं आएंगे चाहे वो कितने भी पैसे दे दे। तो एक एटीट्यूडल इशू है। लेकिन सिगरेट्स फॉर एग्जांपल
का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ कि वो, लेकिन आप देखो सिगरेट का सेल इतना कम नहीं हुआ। प्रॉब्ली व्हाट इज अफेक्टेड इज न्यू यूजर। पहले तो क्या था कि एक पूरा एक सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट वाज ड्रिवन टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए मैचो इमेज, कि सिगरेट पीने वाला मैचो मैन होता है, बहुत हीरो होता है, ही मैन होता है, काउबॉय दिखाते थे। टू दी एक्सटेंट के एक 1950s की 60s की आप ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखे तो हर एक रईस वो सिगार पीता था, या तो पाइप पीता था, या तो हुक्का पीता। तो एक इट वाज अ कल्चरल इथॉस कि वहां पे अगर हम किसी को सिगार या सिगरेट पीता देखा है तो वो इट इज टू बी के इट इज के हाँ वो बड़ा आदमी है, वो ऐसा करेगा। लेटर ऑन इट हैज गॉन डाउन, बट अल्कोहल में क्या होता है, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट होती है। जैसे सभी अल्कोहल का सेम ब्रांड का नाम का और चीजें बेचते हैं, वो सोडा वाटर बेचते हैं, पीने का मिनरल वाटर बेचते हैं, उसी नाम से वो प्लेइंग कार्ड्स बेचते हैं, उसी नाम से वेफर्स बेचते हैं। तो आपको वही अल्कोहल का प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम दिखेगा, लेकिन वो सोडा वाटर होगी या कुछ और होगा। तो देन द आइडिया इज टू रिमाइंड यू कि भाई देखो हमारा प्रोडक्ट याद रखना आप, चाहे हम उसको सोडा वाटर के नाम से आपको याद करा रहे हैं या तो हम किसी और चीज को याद करवा रहे हैं, बट देयर इज, इसको हम एडवर्टाइजिंग लैंग्वेज में एक्सटर्नल क्यूइंग बोलते हैं। आपको रिमाइंड कर रहे हैं, वो नाम बोल बोल के आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारा प्रोडक्ट याद रखना। सो अल्कोहल में इतना इफेक्टिव नहीं हुआ एडवर्टाइजमेंट बैन करने, क्योंकि सो अल्टीमेटली इट डज नॉट रियली हेल्प इन बैनिंग टू वेरी ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि वो एक इंटरनल हमारी यूज का हमारे पे होता है, कल्चर में कैसे समाज कैसे देखता है उसे, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, how we view that substance or that activity. So smoking has come down because a lot of acts also have come. People don't like smoking in public places, बैन हो गया, एयरपोर्ट्स पे या और जगह पे स्मोकिंग के बैन हो गया, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट आता है। लेकिन इट डज नॉट से, फॉर एग्जांपल सिगरेट्स पैकेट के पे अगर आप कैंसर के पेशेंट का फोटो दिखाओगे तो उससे जो सालों से सिगरेट पी रहा है उसको तो असर इतनी नहीं हुई। शायद नया है कोई सिगरेट पीने वाला पहली बार हाथ में पैकेट पकड़ेगा, उसको शायद थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन जो सालों से पी रहा है तो सिगरेट का पैकेट घुमा देता है, वो डरता नहीं है उससे। दे विल कंटिन्यू टू स्मोक बिकॉज़ दे रियली आर नॉट अफेक्टेड विद दैट। तो आपके ओपिनियन में क्या किया जाए सर कि जो जनरल पब्लिक है वो अफेक्ट ना हो, वो एक ये ट्रैप है, इस ट्रैप में ना फंसे, क्या ऐसा किया जाए कि जिससे ये अवेयरनेस हो लोगों के बीच कि ये सब सिर्फ एक ट्रैप है? हाँ, तो ये एक होती है ना, हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है। सो इट इज, देयर इज नो पॉइंट इन क्रिएटिंग मोर एंड मोर। जितने कायदे बनाओगे उतना लूप होल होते हैं, तो कोई ना कोई लूप होल कोई ढूंढ ही लेता है। सो नए कायदा मेरे हिसाब से वो होना चाहिए कि आप 100% इंप्लीमेंट कर सको और 100% लोगों को पकड़ के उसको आप पनिश कर सको। तो ऐसे तो कायदे कोई नहीं होते, चाहे आप हेलमेट का ही ले लो या किसी भी हेल्थ रिलेटेड जो आपकी बेनिफिट में है। हमें हेलमेट का कायदा क्यों बढ़ाना पड़ना चाहिए? अगर हमारा खुद का सर बचाना है हमें मोटरसाइकिल चलाते हुए, तो उसके लिए कानून क्यों होना चाहिए? वो हमें पहननी चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है कि मुझे कोई कायदे के लिए बोले कि तुम ये 500 रुपए का दंड है इसलिए आप हेलमेट पहनो। आपका सर बचाना है, आपकी जिम्मेदारी है, उसमें सरकार का कहाँ पिक्चर में आती है, राइट? तो सिमिलरली ये सब चीजें के लिए सरकार पिक्चर में नहीं आती, लेकिन ये होता है कई बार जानकारी का अभाव होता है, देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस। सो ये हो सकता है कि जैसे आपने सिटीजन फोरम अभी खड़ा किया, तो हम एक ऐसा जो ऐसे और भी ऐसे प्रोडक्ट प्रोग्राम करें या एपिडेम एकेडमिया कुछ ऐसे हम वेबसाइट लॉन्च करें, वहां पे किसी को पीपल विल गेट द राइट इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स और इट इज रिलेटेड टू सब्सटेंसेस और इट इज रिलेटेड टू डिजीजेस, कि भाई ये बीमारी में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब ये दीज आर द डूज एंड डोंट्स, इफ यू आर हैविंग दिस डिजीज देन यू शुड बी डूइंग दिस थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मोटापा कम करने के लिए बोले कि आप ये गोली खा, अगर इतना आसान होता तो फिर हम सभी मोटे क्यों होते ना? एक दो गोली खा के अगर मोटे से दुबले हो सकते थे, तो ऑब्वियसली हम वी आर बीटिंग कैरिड अवे कि बस इजी शॉर्टकट कहाँ से ढूंढो। तो एक साइकोलॉजी हर एक ह्यूमन बीइंग की है, तो वो हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। देयर आर सम थिंग्स कि जिसमें शॉर्टकट नहीं हो सकता, वो हमें खुद ही मेहनत करनी है, हमें खुद ही हमारा बर्ताव चेंज करना है, हमें हमारे खुद ही हैबिट्स चेंज करनी है, तो ही पॉसिबल है, उसके कोई शॉर्टकट नहीं होते। सो इट इज बेसिकली वी हैव टू क्रिएट दैट, एम्पावर पीपल विद दैट नॉलेज, चाहे वो वेबसाइट से हो, आपके जैसे कार्यक्रम से हो, हम और ज्यादा कार्यक्रम करें जहाँ पे वी विल गिव अवेयरनेस। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी हमारे कलीग्स और कम्युनिटी मेडिसिन में भी है कि उसको ये लोग समझ नहीं पाए कि उसकी अहमियत क्या है, कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि दे आर सपोज्ड टू बी एक्सपर्ट्स इन डिजीज प्रिवेंशन। तो कहीं पे भी होगा, जैसे हम बीमारी ना हो तो जैसे मेरे को काउंसलिंग चाहिए, तो आई शुड बी एबल टू गो टू, आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन माय कलीग्स, यंग कलीग्स start their own practice or clinics where people will come and pay money to understand how to not get disease। कि चाचा मेरे फादर को डायबिटीज थी या मेरे फादर को हार्ट डिजीज थी,
तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे हार्ट डिजीज ना हो, या हो तो बहुत देर से हो या ज्यादा सीरियस ना हो। तो देन दिस काइंड ऑफ एडवाइसेस शुड बी अवेलेबल इन दोस क्लिनिक्स और विद थ्रू दो डॉक्टर्स। और इवन कभी जैसे फिजिशियन फ्रेंड्स है वो कभी किसी को रिफर करे कि अच्छा अभी मैंने तो ये आपको ठीक कर दिया आपके हार्ट अटैक से, आइंदा आपको हार्ट अटैक ना हो तो आप कम्युनिटी फिजिशियन के पास जाइए, वो आपको समझाएगा कि आपको स्ट्रेस कैसे प्रिवेंट करना है, how much to exercise, how to control your diet, what you should eat, ये सब ऑयल वगैरह की बात है वो डॉक्टर करेगा कि आप, क्योंकि इसमें सवाल उसका सिर्फ ऑयल का नहीं होता, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, क्या वो अफोर्ड कर पाएगा। नहीं, हम पूरा घर बेच के तो वो तेल नहीं खाएंगे घर बार, तो हमें भी हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा वो डॉक्टर डिस्कस करके आपको बताए। सो देयर आर मेनी सच सिचुएशंस वेयर होपफुली इन फ्यूचर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के जैसे फिजियोथेरेपी होती है या ऐसे कोई रिकवरी के लिए रिहैबिलिटेशन होता है, सो कम्युनिटी फिजिशियन शुड बी स्टार्टिंग such practices where they and people should be ready to pay, that is the most important thing कि लोगों को अपने खुद की हेल्थ के लिए इतनी अहमियत होनी चाहिए कि आई शुड बी रेडी टू पे फॉर गुड एडवाइस। अभी तो क्या होता है हम एक दूसरे को व्हाट्सएप से हम एजुकेट करते हैं ना, इसको फॉरवर्ड इसका कर दिया उसका फॉरवर्ड किसी और को कर दिया, तो हम वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमारी पढ़ाई होती है, we don't get proper advice from a qualified person, so we should now be able to think, people should learn, ये स्पेशली कोविड के बाद ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमें सही एडवाइस चाहिए, हमें सही पर्सन से चाहिए और हमारे लिए जो सही है वो चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही एडवाइस सभी के लिए कॉमन हो सकती है, हर एक के लिए चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। सो आपके लिए जो सही है वो मेरे लिए सही नहीं है, जो मेरे उम्र में सही है वो आपके लिए सही नहीं है, तो मेरे लिए जो सही है वो मुझे जानकारी होनी चाहिए, आपके लिए जो सही है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। So based on that, we should have the right appropriate advice depending on our risk or our health status. So वो that is I see what is likely to happen in future. अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों को ये अवेयर होना चाहिए कि हमें सही इंफॉर्मेशन ढूंढ के हमारे लिए जो सही है वो करना है। ऐसा नहीं है कि मेरा पड़ोसी जो कर रहा है वो करना है, मुझे मेरे लिए जो सही है वो करना है, मेरे रिश्तेदार करने वो मेरे लिए सही जरूरी नहीं है, मेरे लिए मुझे जो करना है वो सही है। तो आई थिंक दैट इज द मेन मैसेज वी शुड टेक फ्रॉम दिस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और हमें इतना अच्छी नॉलेज देने के लिए। आई होप आई विश कि आपका ये मैसेज सब तक पहुँचे और सब अवेयर हो सके इस चीज़ से कि एडवर्टीजमेंट में जो दिखाया जा रहा है वो ज़रूरी नहीं सही है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे हेल्थ के लिए क्या सही है क्या गलत, और इसके लिए हमें अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर्स से भी कंसल्ट करना चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन या बिना कुछ सोचे। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। Thank you for giving me this opportunity.